Hello students, welcome back to maths class. Children, in previous class we have learned to solve problems related to speed, distance and time under the topic application of quadratic equation. Today we will deal with the problems related to pipe and cistern under the same topic application of quadratic equation. Means हम आज पाइप और नल और वाटर टैंक से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. ओके, इससे पहले कि हम क्लास स्टार्ट करें, लास्ट क्लास में मैंने कुछ होमवर्क दिए थे. ठीक है, चलिए हम चेक कर लेते हैं. ओके ओके, फर्स्ट क्वेश्चन वाज, द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन. एन एक्सप्रेस ट्रेन मेक्स a run of 240 km at a certain speed, and the train whose speed is 12 km per hour less takes an hour longer to cover the same distance. Find the speed of the express train in kilometer per hour. ओके, तो इस क्वेश्चन में आपने किया होगा स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर आपने लिया होगा, एंड बाय कंडीशन t2 सेकेंड टाइम. ठीक है, t2 मीन्स टाइम टेकन बाय अनदर ट्रेन, इट इज टेक्स 1 hour longer, मीन्स प्लस 1, t1 plus t1 plus 1. Okay, means transpose this one, so t2 minus t1 equals to 1. When you substitute the values, you will get this equation, x square minus 12x minus 2880. Okay, here we have applied quadratic formula. Clear? So d equals to, for quadratic formula you have to find d is b square minus 4ac. Okay, when you substitute the values, you will get 11,664. Find the square root of this number, you will get 108, and by formula x equals to minus b plus minus root d by 2a. So x का वैल्यू होगा 60 एंड यहाँ पे x का वैल्यू मिलेगा minus 48. We will reject it because the speed cannot be negative. So x equals to 60 means speed of express train equals to 60 km per hour, and another train will be 60 minus 12, that is. Okay, come to the next question. Question number 2. Question number 2 is, a motorboat whose speed in still water is 15 km per hour goes 40 km downstream and comes back in a total time of 6 hours. Find the speed of the stream. ये मोटरबोट वाला क्वेश्चन था, उसमें आपने लिया होगा स्पीड ऑफ स्ट्रीम, धारा की चाल x किलोमीटर पर आवर by the condition t1 plus t2. It takes total time of 6 hours, means t1 plus t2 equals to 6. When you substitute the values, you will get x square minus 25 equals to 0. Okay, means minus 25 को वहाँ ले जाइए, plus 25, तो x equals to square root of 25, that means plus minus 5. Means speed of stream you will get 5 km per hour. Okay, minus हम लोग नहीं लेंगे. Next, question number 3. Come to question number 3. Question number 3 is, okay, third question is, a train travels a speed of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. Okay, ये आपके exercise 4.1 का question है, question number 2 का 4th part. Okay, तो we assumed that speed of train is x km per hour, so t2 will be by condition t2. Okay, t2 means changed speed equals to usual speed, time taken by the train in usual speed, plus 3. It takes 3 hours more. When you substitute the values, you will get this equation, x square minus 8x minus 1280 equals to 0. When you solve by using any method, factorization or quadratic equation, you will get x equals to 80 by 2 means 40 and x equals to minus 32. So we will reject this number minus 32. Speed cannot be negative, negative नहीं हो सकता. Therefore speed of train equals to 40 km per hour. Okay. Now come to our topic. Today we will deal with the problems related to pipe and cistern. Okay. Now I am going to take first question, and the question is, this question has been taken from exercise 4.3, question number 9. Two water taps together can fill a tank in 9 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank.
दो पानी के नल एक साथ एक हौज को, हौज मीन्स वाटर टैंक को 9/3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने के समय ज्ञात कीजिए। ओके ओके, इन दिस क्वेश्चन 2 pipes are there. Okay, one has larger diameter, okay, and another pipe has smaller diameter. Okay, so you can easily say which pipe will be faster to fill the tank. अगर हम एक को सेपरेटली हम वो करते हैं, अगर इस पाइप को देखते हैं तो इसका जो डायमीटर है ज़्यादा है, मीन्स इससे पानी फास्ट जल्दी भरेगा, ये टैंक जल्दी भर जाएगा। वहीं पे स्मॉलर टैंक है, स्मॉलर डायमीटर है, मीन्स ये पाइप जो है स्लो होगा। ओके, तो ये स्लो होगा और दिस वन विल बी फास्टर। ओके, तो हम इसको एक काम कर लेते हैं, फास्टर पाइप और टैप, ये हो जाएगा स्लोअर टैप। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। ओके, मान लीजिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 2 taps together can fill a tank in 9/3/8 hours. ओके, तो मान लीजिए आपके पास एक वाटर टैंक है, ओके, और ये जो लार्जर फास्टर जो पाइप है इसको फिल होने के लिए 2 आवर्स का टाइम लेता है। क्या ये ले रहा है 2 आवर्स ले रहा है, पूरा कंप्लीटली फिल होने के लिए 2 आवर्स ले रहा है। तो क्या आप बता सकते हैं कि 1 आवर में कितना फिल होगा? पोर्शन ऑफ द टैंक विल बी फिल्ड, दैट विल बी हाफ। कैसे हाफ होगा 1 आवर में? 2 आवर्स में 2 hours it takes to fill the tank. Okay, so in 1 hour it will fill the tank 1/2 means half. Okay, ये समझ आ रहा है आपको? Okay, या फिर हम एक काम करते हैं, फास्टर और ये स्लोअर। ओके, ये ले रहा है टाइम 2 आवर्स, ठीक, और ये स्मॉलर रेडियस वाला जो टैप है, स्लोअर टैप, इट टेक्स, सपोज इट टेक्स 4 आवर्स। क्या स्मॉलर वन, स्मॉलर ले रहा है हाउ मच? 4 आवर्स। ओके, नाउ पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड इन 1 आवर, 1 आवर में ये कितना फिल होगा? टोटल टाइम ले रहा है 2 आवर्स, तो ये लेगा 1/2 पार्ट। यहाँ तक समझ आ गया? 2 आवर्स कंप्लीट ले रहा था, 1 आवर्स में कितना हो जाएगा? 1/2 मीन्स आधा, हाफ ही भरेगा ये। ओके, इन दिस केस ये ले रहा था, टोटल टाइम इट वॉज टेकन टू फिल द टैंक वॉज 4 आवर्स, देन पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड, पोर्शन ऑफ टैंक will be filled in 1 hour. क्या बता सकते हो कि 1 आवर में ये कितना, इसका पोर्शन कितना कवर हो जाएगा, कितना फिल होगा, कितना पानी भरेगा इसमें? 1/4। देख लीजिए, ओके, तो इसका पानी यहीं तक आएगा, मीन्स 1 आवर में इट विल फिल 1/4 ऑफ दिस टैंक। इतना पार्ट ही भरेगा 1/4। 2 आवर्स में 2/4 मीन्स हाफ, 3 आवर्स में 3/4, 4 आवर्स में 4/4 मीन्स 1, कंप्लीट भर जाएगा। क्लियर? थोड़ा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हुआ है? ओके, ना हमको इसका टाइम पता है ना इसका टाइम पता है, ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट द टाइम टेकन बाय विच पाइप। किसको लेंगे हम? फास्टर पाइप को लेंगे, स्लोअर पाइप को लेंगे? नाउ इन दिस क्वेश्चन द टैप ऑफ लार्जर diameter takes 10 hours less than smaller one. Smaller radius means slower tap. So we will assume that the slower tip, the time taken by slower tip is x. Clear? Okay. Similarly, faster pipe will take how much time? X minus 10. X is slower tap, less, minus and 10 आवर्स -10। क्लियर हो गया आपको? ओके ओके स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको समझाया था
ठीक है, कि हमें लेना है टाइम टेकन बाय स्लोअर टैप बिकॉज फास्टर टैप इज डिपेंड्स ऑन slower tap. So we have taken the time taken by slower tap is x hours. Clear? Okay. Then हमने इसको दो में डिवाइड कर लिया है, एक slower and then faster tap में. Clear? तो first slower tap में, धीमी नल में, okay, time taken is x hours. तो by question time taken by faster tap it will be x means smaller one minus less 10 minus 10 hours. Clear? Okay. Portion of tank filled in 1 hour. अब हम लेंगे portion of tank filled in 1 hour. Okay. जैसे मैंने बताया था आपको 2 hours में फुल भर जाता था, ये पूरा फिल हो जाता था, तो 1 hour में कितना होगा, हाफ होगा. तो आपको कैसे मिला 1/2. क्लियर? तो यहाँ पे टाइम ले रहा है, स्लोअर पाइप टेक्स x hours, देन कितना पोर्शन भरेगा इसका 1/x. क्लियर? सेम फास्ट टैप में भी वही चीज़ है. ओके, जो तेज नल है उसमें भी वही है. पोर्शन ऑफ टाइम फिल्ड इन 1 hour. 1 hour में कितना भरेगा, आपको टोटल टाइम ले रहा है x - 10, तो 1 hour में भरेगा x - 10 hours. क्लियर? नाउ it has been given in your question that time taken by both pipe to fill the tank. टैंक भरने के लिए टोटल टाइम कितना ले रहा है 9/3/8. ओके, तो 9/3/8 टाइम ले रहा है इसको फिल होने के लिए जब दोनों पाइप को हम ऑन कर देते हैं. क्लियर? जब दोनों पाइप ऑन हुआ है इतना टाइम लिया है, 9/3/8 आवर्स लिया है. मीन्स 1 hour में कितना फिल होगा. ओके, मान लीजिए जैसे मैंने बोला आपको फर्स्ट वाला मान लिया हमने इसे, ये कितना आवर्स ले रहा था 2 hours और ये ले रहा था 4 hours. ओके, तो ये टैंक फास्टर टैप 1/2 मीन्स कितना भरेगा वो, हाफ. 1 hour में कितना लेगा, हाफ. क्लियर? विच दिस वन. ओके, सेकेंड वन 4 hours टोटल कंप्लीट लेता है टू फिल द टैंक. तो 1 hour में वो कितना फिल करेगा 1/4, इतना ही पार्ट फिल करेगा. ओके, तो इतना पार्ट फिल करेगा मीन्स सेकेंड वाला पाइप इतना लेगा. मीन्स ये जो टोटल जो पानी है, ओके, ये जो पार्ट है पोर्शन मीन्स इतना पार्ट 1/2 और ये पार्ट दिस वन इज 1/4. ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमको मिल जाएगा ये टोटल कितना पार्ट फिलअप हुआ है, 1 hour में कितना पार्ट फिल हुआ है. ओके, चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं. 2 + 1 3, 3/4 आवर्स, 3/4 पार्ट्स हुआ है. ओके, मीन्स इसमें ये हो गया 1/2 और ये हो गया 1/4. तो टोटल कितना पार्ट फिल हुआ है दोनों पाइप के हिसाब से, जब दोनों पाइप हमने ऑन कर दिए तो दोनों पार्ट के हिसाब से कितना पार्ट फिल हुआ है, 3/4 पार्ट फिल हुआ है. कितना आवर्स लिया, तो हम क्या करेंगे 1 hour में इतना है. ओके, तो हम जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे कि 1 hour में इतना ही पार्ट भर रहा है तो 1/3/4 मीन्स 4/3 आवर्स लेगा ये. क्लियर? 4/3 आवर्स मीन्स 1/3. जब हम इन दोनों को ऑन करेंगे तो टोटल टाइम कितना लेगा, फर्स्ट वाला जो है 2 hours लेता था, सेकंड वाला 4 hours लेता था, लेकिन जब दोनों पाइप को हमने ऑन किया तो हमें मिला 1/3 मीन्स 1 hour and 20 minutes. ओके, तो 20 minutes में 1 hour 20 minutes में पूरा फिल हो गया. तो ये हमें मिला कैसे, हमने क्या किया, हमने क्या किया टाइम टेकन बाय स्लोअर टैप कितना हो गया x. तो 1 hour में कितना पानी भरा, कितना फिल हुआ है टैंक में 1/x. ओके, तो पोर्शन ऑफ सेकेंड फास्टर टैप उसने कितना किया 1/x - 10. ओके, जब बोथ पाइप, ठीक है, कैन फिल द टैंक इन 9/3/8 मीन्स इन 1 hour वो कितना पार्ट भरेगा, इट विल फिल 9/3/8. ओके, इसका क्या मतलब है, दैट इज 75/8. ओके, जब इसका हम रेसिप्रोकल करते हैं तो 8/75 पार्ट मीन्स दिस पार्ट प्लस दिस पार्ट मस्ट बी इक्वल टू 8/75 मीन्स by condition 1/x plus 1/x - 10
इक्वल्स टू 8/75। नाउ इसको आप जब सॉल्व करोगे तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करना बहुत ईजी है, बट इट इज़ नॉट द प्रॉपर वे टू राइट योर सॉल्यूशन। हाउ विल यू राइट? जस्ट राइट फ्रॉम हियर, लेट द टाइम टेकन बाय स्लोअर टैप इक्वल्स टू x hour. Next step will be time taken by faster tap equals to x minus 10. Okay. Third step, portion of tank filled in 1 hour by slower tap. Okay. 1/x. Next one, portion of tank filled in 1 hour by faster tap equals to 1/x minus 10. Then fifth step will be time taken by both pipe. कितना ले रहा है? फिर time taken portion of tank filled by both pipe in 1 hour. ओके ये लेंगे, उसके बाद इन दोनों को ऐड करने से हमें ये मिलना है। वी ऑब्टेन दिस इक्वेशन 1/x plus 1/x minus 10 equals to 8/75. ओके, व्हेन वी कैलकुलेट दिस वन, तो जस्ट मल्टीप्लाई दिस वन, तो 1 into x minus 10, देन प्लस 1 into x 1x बाय मल्टीप्लाई दिस टू, तो x square minus 10x, x square minus 10x equals to 8/75. ओके, x plus x will become 2x, टेक आउट कॉमन 2, तो हमें मिलेगा x minus 5. ओके, and 8, this 2 will go to the RHS and it can be written as 8 into x square minus 10x. ये यहाँ आ गया, 75 यहाँ चला जाएगा. ओके, 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इसको हम इस तरफ ले गए, तो यहाँ इंटू है तो वहाँ जाके डिवाइड. ओके, तो 8/2 means 2 1s are 2, 2 4s are 8. It is not 48, it is 4. 2 1s are 2, 2 4s are. ओके, तो 75 यहाँ मल्टीप्लाई किया, तो 75 into x 75x माइनस 75 into 5 375, 4 into x square 4x square minus 4 into 10x, it becomes 40x. Okay, 40x. Transpose all the terms to the right side, तो आपको मिलेगा, you will obtain 4x square minus 40x minus 75x and minus 375 will become plus 375. Now you obtain a quadratic equation, that is 4x square minus 115x plus 375 equals to 0. By factorization method, we have factorized a into c. इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करोगे तो आप मिलेगा 1500. फैक्टराइज किया, ओके, हमने दो ग्रुप में डिवाइड किया है, तो इसको हम जो मल्टीप्लाई करते हैं 100, 5 3 is 15. ओके, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 115. ओके, तो इनमें से कॉमन है 4 and x. 4x कॉमन लिए तो x minus 25, यहाँ पे कॉमन है 15, तो 15 कॉमन लिए x minus 25 equals to 0, और x minus 25 both are common in both term, तो x minus 25 कॉमन ले लिए, 4x minus 15 बच गया है 4x minus 15 equals to 0. That means x minus 25 equals to 0 और 4x minus 15 equals to 0 और x equals to 25, x equals to 15/4. ओके, इन दोनों में से आपको चूज़ करना है कि ये करेक्ट है या ये करेक्ट है. हमने इसे रिजेक्ट किया है, क्यों? 15/4 means divide it. 15/4 means 3/4. When you divide 15/4, you will get 3/4 means 3 hours 45 minutes. ओके, अगर ये जो स्लोअर पाइप है ये ले रहा है 3 hours, तो जो फास्टर टैप है वो कितना लेगा? -10. तो 3 से अगर हम -10 करेंगे तो हमें मिलेगा -7. माइनस टाइम विच इज़ नॉट पॉसिबल. ठीक है, तो हम इसे इससे रिजेक्ट कर रहे हैं. तो हमने लिया x equals to 25. Then write the answer. Time taken by slower pipe equals to 25 and time taken by faster pipe will be, what was it? X minus 10. X is 25. 25 minus 10 is 15 hours. Clear? Okay. Now we will go to the next topic, that is problems related to triangles. Okay, students. The question is on your screen. The diagonal of a rectangular field is 60 meter more than the shorter side. If the longer side is 30 meter more than the shorter side, find the sides of the field. In हिंदी, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है. यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए. ओके, इस क्वेश्चन में देखिए, इट इज़ अ रेक्टेंगुलर फील्ड. आयताकार खेत है, एक आयताकार खेत है, एंड डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड. डायगोनल, ओके, डायगोनल विकर्ण इज मीन्स एक विकर्ण है, एक डायगोनल है. ओके, BD इज अ डायगोनल. इट सेज दैट diagonal is this BD is more than shorter side. Which one will be the shorter side?
तो एक रेक्टेंगल है, दैट मीन्स लेंथ एंड ब्रेड्थ, तो ब्रेड्थ छोटा होगा, दिस इज द शॉर्टर साइड. ओके, छोटी भुजा कौन सी हो गई? BC. डायगोनल और लॉन्गर साइड विल बी DC, ये लॉन्गर साइड हो गया. ओके, तो दिस डायगोनल इज, this is 60 meter more than shorter side. Okay, means diagonal depends on shorter side. Clear? Next line, if the longer side, if DC longer side बड़ी भुजा is 30 meter more than shorter side, means this DC is 30 meter longer than the shorter side. Diagonal also depends on the shorter side. This longer side is also depends on shorter side. Means इसका अगर हमको पता चल जाए तो बाकी सबका पता चल जाएगा. Means अगर मान लीजिए ये 10 हो गया तो ये कितना हो जाएगा? 60 plus 10. ओके, ये 10 हो गया तो ये कितना हो जाएगा? 30 plus 10. या x plus 30. क्लियर है? Means आपको किसको अज्यूम करना है? शॉर्टर साइड को हम लोग x अज्यूम कर लेंगे. ठीक है? Let the length of, okay, let the length of shorter side equals to x meter. Clear? छोटी भुजा की लंबाई, माना छोटी भुजा की लंबाई, okay. Now diagonal according to question, by question, प्रश्नानुसार डायगोनल विकर्ण is means equals to 60 meter more than, हम शुरू करेंगे than से. shorter side is x, more means plus 60. Clear? Next, longer side is equals to, दान से शुरू करना है हमें. shorter side is x more plus 30. Clear? अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गया है. This one is 60 plus x, shorter side is x, and this one is 30 plus x meter. ठीक है? Okay. Now it is a rectangle and each angle of the rectangle is 90 degree. तो आपको पता है each angle कितना होगा? समकोण होगा, 90 डिग्री होगा. Now in triangle BDC, it is a right angled triangle. Okay, we can apply Pythagoras theorem. आपको पता है Pythagoras theorem क्या होता है? h square equals to p square plus p square. Clear? Okay. In right triangle BDC by Pythagoras theorem. Pythagoras प्रमेय द्वारा h square equals to p square plus b square. Okay, h means hypotenuse कर्ण है, कितना है ये? db. bd square equals to perpendicular is bc square, and base is dc square. Now we will substitute the values. Clear? Okay, so BD is 60 plus x whole square equals to BC is x square plus DC is 30 plus x whole square. Okay, we will apply the formula a plus identity a plus b whole square, 60 square plus 2ab 120 x plus a square. Clear? Equals to x square plus 30 square a plus b whole square, 30 square plus 60 into x, 2 into 30 into x plus x square. Okay, x square get cancelled. पूरे टर्म्स को हम इस तरफ लेकर आएंगे, that is x square plus 30 square means 900
plus 60x. 60 whole square means 3600 minus 120x equals to 0. Clear? Now x square like terms are these two. Okay, when you subtract these two, you will get minus 60, and when you subtract and the 900, you will get minus 2700. Clear? Okay, now you have two formulas, that is factorization method and quadratic formula. You can apply any one of these and you can find the value of x. Okay, bd square equals to bc square plus dc square, ये हमें मिला पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके. Okay, तो bd was x 60 plus x. Okay, and bc was this one x square shorter side. Okay, and 30 plus x was dc was 30 plus x. Okay, so when you substitute the value, we will apply the identity a plus b whole square. A square plus 2ab plus b square. तो यहाँ पे x square plus 30 plus x whole square means a plus b whole square. 30 square plus 2 into 30 into x, that is 60x plus x square. Okay, x square cancel हो जाएगा. Okay, तो पूरे टर्म्स को, इस पूरे टर्म को हम इस तरफ लेकर आएंगे. तो ये हो गया x square plus 30 square. 30 square means 900 plus 60x. 60 into 60 3600. 3600 को हम यहाँ लेकर आए माइनस 3600. 120 प्लस में यहाँ पे हो गया माइनस 120 x इक्वल्स टू 0. ओके, तो x स्क्वायर 60x एंड माइनस 120x, इन दोनों को हम सॉल्व किए तो फिर मिला हम लोगों को माइनस 60x माइनस 2700 इक्वल्स टू 0. यहाँ पे मैंने अप्लाई किया है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के लिए वी नीड टू फाइंड द d डिस्क्रिमिनेंट. d इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac. ठीक है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज b 4ac. तो इसको वैल्यूज जब हमें सब्स्टिट्यूट किया तो हमें मिला d इक्वल्स टू 14,400. ओके, नाउ द फॉर्मूला इज x इक्वल्स टू माइनस b माइनस b प्लस रूट d बाई 2a and minus b minus root d by 2a. Here b is minus 60. Clear? So minus 60 plus root over 14,400. इसका स्क्वायर रूट निकालना आपको आता होगा, आना चाहिए आपको. क्लास 8 में है, आप उसको एक बार रेफरेंस कर लीजिए. ओके, 14,400 का जब हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे हमें मिलेगा 120. ओके, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 60 प्लस 120 बाई 2, दैट इज इन दोनों को ऐड किया तो 180 बाई 2, 180 का हाफ दैट इज 90. यहाँ पे इन दोनों को माइनस किया हमें आंसर मिला है माइनस 30 नहीं हो सकता है, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव. क्लियर? नाउ लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड. ठीक है, वी हैव अज्यूम्ड दैट लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड इज x इज 90. सो ये जो शॉर्टर साइड था, ओके, आपको याद होगा ये था x. ओके, ये था आपका 60 प्लस x. ओके, और ये 30 प्लस x. ये चीज़ है कि एक्चुअली इट इज़ द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल एंड दिस वन इज लेंथ. ओके, तो शॉर्टर साइड इज ब्रेथ दैट इज 90 मीटर एंड लेंथ ऑफ द लॉन्गर साइड दैट इज लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 30 प्लस x. 30 प्लस x और 30 प्लस x और x प्लस 30 कुछ भी लिख सकते हैं आप. x प्लस 30, x इज 90 प्लस 30 is 120. Clear? Okay. Now homework time. Look at the screen. The first question is the altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base. If the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides. एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है. यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए. इसमें आपको डायरेक्टली आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है. ओके, क्वेश्चन नंबर 2. Two pipes running together can fill a cistern in 2 and 8 by 11 minutes. If one pipe takes 1 minute more than the other to fill the cistern, find the time in which each pipe would fill the cistern. हिंदी में, दो नल इकट्ठे एक टंकी को
2 and 8 by 11 मिनट में भरते हैं। यदि एक नल अकेला टंकी को भरने में दूसरे से अधिक लगाता है तो दोनों नल अकेले टंकी को कितने समय में भरेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 2 pipes running together can fill a cistern in 3 1 by 13 minutes. If one pipe takes 3 minutes more than the other to fill the cistern, find the time in which each pipe would fill the cistern. हिंदी में, दो नल इकट्ठे एक टंकी को 3 1 by 13 मिनट में भरते हैं। यदि एक नल अकेला टंकी को भरने में दूसरे नल से 3 मिनट अधिक समय लगाता है तो दोनों नल अकेले टंकी को कितने समय में भरेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये तो था आपका होमवर्क, होम असाइनमेंट था। अब ट्राई कीजिए, नेक्स्ट सेक्शन में हम इसके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू पाइप एंड सिस्टम एंड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ट्रायंगल। होप द concept is clear to you. See you in next class. Till then, take care.